on its part in view of the fact and circumstance of a case, or the party cannot be alleged to have been not acting delightfully or remaining inactive. However, the fact and circumstance of the case must afford sufficient ground to enable the court concerned to exercise discretion for the reason that whenever the court exercises discretion, it has to be exercised judicially. हाँ जी, जब हमने अब सफिशिएंट कॉज की बात की, बेटा सफिशिएंट कॉज के लिए डायरेक्टली आप इसको मार्क कीजिए आपकी 10-11 लाइंस छोड़ने के बाद है sufficient cause means that party had not acted in a negligent manner or there was a want of bona fide on its part in view of the facts and circumstances of a case, or the party cannot be alleged to have been not acting diligently or remaining inactive. However, the facts and circumstances of each case must afford sufficient ground to enable the court concerned to exercise discretion for the reason that whenever the court exercises discretion, it has to be exercised judiciously. तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें इस डिक्री को सेट असाइड कर कुछ भी फायदा नहीं मिलना, पर उसे परमानेंट एलिमनी के लिए उसका जो एप्लीकेशन था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमानेंट एलिमनी ग्रांट कर दिया. ठीक है, प्लीज नेक्स्ट देखिए इशू. नेक्स्ट देखिए, रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा, रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा वर्सेस रमेश्वरी रमेश चंद्र डागा. बेटा इस केस को हमने बाइगैमी में रेफर किया था. जब हमने बाइगैमी में इसको रेफर किया था उसमें हस्बैंड एंड वाइफ है. फर्स्ट मैरिज से 1 सन था, 1 डॉटर थी. इस वाइफ की डेथ हो गई, फर्स्ट वाइफ डाइड. इसने सेकेंड मैरिज की W1 से. W1 शी इज अ ऑलरेडी मैरिड फीमेल जिसकी मैरिज हुई थी H1 से, और इन दोनों के बीच में कस्टमरी डाइवोर्स हुआ. और कस्टमरी डाइवोर्स किस नेचर का था? उस कस्टम का था जो महेश्वरी कम्युनिटी में प्रिवेल करती थी. कस्टम एज प्रिवेलिंग इन महेश्वरी कम्युनिटी. तो दोनों के बीच में कस्टमरी डाइवोर्स हो गया. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब मैरिज हो चुकी है बिटवीन H एंड W1. यहां पर डिस्प्यूट अराइज हो गया. W1 ने रिलीफ मांगा जुडिशियल सेपरेशन प्लस मेंटेनेंस. हस्बैंड ने कहा इनका कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमारी मैरिज तो वॉइड है अंडर सेक्शन 11, क्योंकि व्हेन आवर मैरिज इज सोलमनाइज्ड W1's previous marriage with H1 was already existing. Therefore, he prayed for decree of nullity. जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टली हस्बैंड का प्ली एक्सेप्ट कर लिया और पार्टली वाइफ का. हस्बैंड का प्ली टू द एक्सटेंट कि मेंटेनेंस वॉइड मैरिज की वाइफ को नहीं देना वाज रिजेक्टेड, बट डिक्री ऑफ नलिटी वाज ग्रांटेड. और वाइफ के लिए जुडिशियल सेपरेशन नॉट गिवन बिकॉज मैरिज वैलिड नहीं है, डिक्री ऑफ नलिटी दे दिया, but plea of maintenance was accepted. And this was the first case where the Supreme Court has reflected the mandate of section 25, where even our parliament has intended that this remedy should be available to wife of a void marriage under section 11. Clear है? Please document निकालिए. रीड करना की फरीमन वर्सेस बीना के ऊपर ही है. The expression? Yes.
The expression used in the opening part of section 25 enabling the court exercising jurisdiction under the act at the time of passing any decree or at time subsequent thereto to grant alimony or maintenance cannot be restricted only to as connected decree of judicial separation under section 10 or decree under section 13, divorce under section 13. When the legislature has used such wide expression as at the time of passing of any decree, it encompasses within the expression all kind of decree such as restitution of conjugal rights under section 9 and judicial separation under section 10, declaring marriage as null and void under section 11, annulment of marriage as voidable under section 12 and divorce under section 13. ठीक है प्लीज, तो उन्होंने क्लियर किया जो हमारा सेक्शन 25 है वहां पर यूज हो रहा है एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री। तो कोई भी डिक्री पास हो रही है फ्रॉम 9 to 13 वहां पर ये अप्लाई करेगा और वहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, चाहे वॉइड मैरिज की वाइफ है चाहे वॉइडेबल की वाइफ है, 9 से 13 में डिक्री पास हो रही है और डिक्री चाहे वो आरसीआर की है चाहे जेएस की है चाहे नल्टी की है 11 12 चाहे डिवोर्स की है, सेक्शन 25 अप्लाई करेगा। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट केस है बेटा कोमलम अम्मा। कल हमने जजमेंट को कोट किया था, फर्स्ट पेज निकाल लीजिए। कोमलम अम्मा वर्सेस कुमारा पिल्ले राघवन पिल्ले। कोमलम अम्मा वर्सेस कुमारा पिल्ले राघवन पिल्ले। इसमें लिखिए in this case the Supreme Court has defined the word maintenance as used in हेलो निशा, शेयर क्यों किया आपने नहीं डॉक्यूमेंट शेयर हो चुका है? Yes. क्या लिखा एक बार फिर रीड करें। In this case, the Supreme Court has defined the word maintenance as used by the Supreme Court or as used by Hindu Adoption and Maintenance Act as well as section 24 and 25 of Hindu Marriage Act 1955। बेटा चैट्स में शेयर किए? Yes, ma'am. यस बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ नई बात हो। यहां पर इवन जब हम बीपी अचला आनंद का जो नेक्स्ट केस है वहां हम इसको रेफर करते हैं, यहां पर क्या है कि लोग मेंटेनेंस में सिर्फ फूड शेल्टर वगैरह सोचते हैं कि सिर्फ खाने पीने की बात है। सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन वन स्टेप अहेड। सुप्रीम कोर्ट कहती है मेंटेनेंस का जो वर्ड है उसमें शेल्टर उसका इनहेरेंट पार्ट है, तो वाइफ को आपको क्या देना पड़ेगा, राइट टू रेजिडेंस। और कोर्ट ने कहा अगर आपका इवन डाइवोर्स तक हो चुके हैं और आप वाइफ को रेजिडेंस नहीं दे पा रहे हैं अलग से, फिर तो बेटर है कि जिस घर में आप रह रहे थे, मींस जिसको हम उनका मैट्रिमोनियल होम कह रहे हैं, वहीं पर आप वाइफ को कोई प्लेस दे दो। अदरवाइज यू हैव टू मेक सेपरेट अरेंजमेंट फॉर हर मेंटेनेंस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर है? इसमें तो मेंटेनेंस डिफाइंड नहीं है, आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट निकालिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वहां का जो डेफिनेशन क्लॉज है वहां पे मेंटेनेंस डिफाइंड है। बेटा रीड करना, मेंटेनेंस की डेफिनेशन रीड। Section 3 clause D. Yes. Maintenance includes
Subclause 1. In all cases, provision for food, clothing, residence, education, and medical attendance and treatment. Yes. Clause 2. In the case of an unmarried daughter, also the reasonable expenses of an incident to her marriage. Clear it? Yes. इसमें नहीं. डॉक्यूमेंट निकालिए बेटा, डॉक्यूमेंट निकालिए. डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दीजिए मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ HMA. मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ HMA. Yes. Meaning of maintenance under section 25 of HMA. हम क्यों इसमें सेक्शन 25 का रेफरेंस कर रहे हैं? क्योंकि 24 में तो इंटरिम मेंटेनेंस है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन देना है. तो जब 24 में दी जाती है तो कोर्ट की प्राइमरी कंसीडरेशन होती है कि वो अपना गुजारा कर सके और प्रोसीडिंग्स के लिए उसे एक्सपेंसेस मिल जाएं. पर जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना है, हमने उसके आगे का भी प्रोविजन देखना है. इसको रीड कर बेटा. Maintenance, as we see it, necessarily must encompass a provision for residence. अगर हम बेटा, क्योंकि मेंटेनेंस ये हमें देखना पड़ेगा, डिफरेंट स्टैट्यूट में है पर पर्पस तो सबका सेम है. अगर आप मेंटेनेंस 18 में मांग रहे हैं तब भी मेंटेनेंस है, अगर 25 में मांग रहे हैं तब भी मेंटेनेंस है, अगर 125 में मांग रहे हैं तब भी मेंटेनेंस है. पर क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर अगर हमने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को देखा, उन्होंने ऑलरेडी वहां पर रेजिडेंस को इंक्लूड किया हुए, पर यहां पर वो डिफाइंड नहीं था. तो इस कोई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 25 को रेफरेंस करते हुए कहा कि यहां पर राइट ऑफ रेजिडेंस भी इंक्लूड होगा. रीड कर बेटा. Provision for residence. Maintenance is given so that the lady can live in a manner more or less to which she was accustomed. The concept of maintenance must therefore include provision for food and clothing and the like, and take into account the basic need of a roof over the head. Provision for residence may be made either by giving a lump sum in money or property in lieu thereof. It may also be made by providing for the course of the lady's life a residence, money for other necessary expenditure. Where provision is made in this manner, by giving a life interest in property for the purpose of residence, that provision is made in lieu of a existing right to a maintenance, and the Hindu lady acquires far more than a vestige of title, which is deemed sufficient to attract section 40 clause 1. ये जजमेंट का इंपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो कैसे? क्योंकि अभी हमने ये सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे हैं. सक्सेशन एक्ट नहीं किया तो कैसे इन्होंने दोनों को कोरिलेट किए? बेटा हम इसको रेफरेंस करेंगे बिकॉज यहाँ पर अब हमने अंडरस्टैंड करना है सेक्शन कहना क्या चाहता है. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम थोड़ा सा रेफर करेंगे सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को, ताकि हमें पता चले कि जजमेंट का जो असली रेशो है वो क्या है. जजमेंट का असली जो रेशो है वो क्या है? हाँ जी, जब हम सेक्शन 14 की बात करते हैं, ये बहुत डिटेल्ड प्रोविजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, पर यहां पर हम इसको बहुत क्रक्स में रेफर कर रहे हैं ताकि जजमेंट को हम समझ सके कि वो क्या कह रहे हैं. हिंदू वुमेन के पास प्रॉपर्टी का कोई भी राइट नहीं था शुरू से ही. जब हम हिंदू किसकी बात कर रहे हैं तो शुरू से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती थी, जहां पर वो जिस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होती थी, और वह क्या था? स्त्री धन. तो स्त्री धन क्या होता था? शादी के टाइम पर जो ज्वेलरी अपने माता पिता से मिली है या इन लॉज से मिली है, कैश मिला है, उसको हम स्त्री धन में डालते थे और सिर्फ वही उसका होता था. एक एक्ट आया, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937. 1937 में ये एक्ट आया और इसने हिंदू विडो को
एक और एक्स्ट्रा राइट दिया हिंदू फीमेल को, और वो क्या था? लिमिटेड एस्टेट। 1937 के बाद हिंदू वुमेन के पास दो तरह की प्रॉपर्टी हो गई, एक तो स्त्री धन जिसकी वो फुल ओनर है, और दूसरी लिमिटेड एस्टेट। पर लिमिटेड एस्टेट के दो फीचर्स थे। पहला, नो राइट ऑफ एलिनेशन, वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्या दिए? ओनली राइट ऑफ एंजॉयमेंट। आप सिर्फ प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। इसका मतलब अगर हस्बैंड का घर है, आप उसमें रह रहे हैं, आप रहते रहें अपने लाइफ टाइम तक, और आपके बाद क्योंकि आपका कोई बच्चा नहीं है, प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू रिवर्सनेस, चाचे तायों में प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो पहला तो था नो राइट ऑफ एलिनेशन, सिर्फ राइट ऑफ एंजॉयमेंट है। एंड आफ्टर हर डेथ प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी रिवर्सनर्स को। ठीक है प्लीज? रिवर्सनर्स होते हैं कोलेटरल्स। जब आपकी अपनी लाइन में कोई डिसेंडेंट्स नहीं है, तो जो पैरेलल लाइंस में तो ब्रदर सिस्टर होंगे, उनकी लाइन में आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। उसके बाद 1937 के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट का 1956 का एक्ट आ गया, और उसने क्या करा कि जो विडो का लिमिटेड एस्टेट है उसको सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ने फुल ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। जो लिमिटेड एस्टेट था उसको फुल ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। पर कन्वर्जन की सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी? कन्वर्जन की सबसे बड़ी कंडीशन थी, जब एक्ट कमेंसमेंट आया, जो एक्ट है दैट केम इनटू कमेंसमेंट ऑन 17 जून 1956। इस टाइम पर विडो के हाथ में प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए। तो अगर लिमिटेड एस्टेट उसके पोजेशन में है, कौन सी डेट को? 17 जून 1956, और ये डेट किसकी है? कमेंसमेंट डेट। तो वो अब उसकी लिमिटेड नहीं रहेगी, वो अब विडो क्या बन चुकी है? उसकी फुल ओनर। और अगर प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में नहीं है, देन ओल्ड लॉ विल कंटिन्यू टू अप्लाई, और वो उसकी क्या बन जाएगी? लिमिटेड ओनर ही रहेगी, और उसका बेनिफिट रिवर्सनर्स को मिलेगा। तो सिर्फ वही प्रॉपर्टी जो फीमेल के पोजेशन में थी ऑन 17 जून 1956, हमने उसको उसका फुल ओनर बनाया। ठीक है बेटा? पोजेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इन नेम और एंजॉयमेंट करेंगे? नहीं बेटा, एंजॉय कर रही। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को सेल कर दिए, आपके पास पोजेशन नहीं है, पर अगर आप मॉर्टगेज कर रहे हो, आपके पास पोजेशन है, क्योंकि मॉर्टगेज में पर्सन इज नॉट डाइवेस्टेड 100% ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और ये कहां पर मैनिफेस्ट होता है? राइट ऑफ रिडेम्पशन। वो पैसे देकर, लोन देकर प्रॉपर्टी अपना ले सकती है वापस, इसका मतलब उसने अपने पास राइट रखा हो। सेल गिफ्ट नहीं कर सकती, बिकॉज सेल गिफ्ट में तो उसका 100% पोजेशन चला जाएगा। तो जब हमने कहा, तो 14(1) तो डील करता है विद एब्सोल्यूट एस्टेट के साथ, बिकॉज लिमिटेड से एब्सोल्यूट बन चुकी है, और वो डील कर सकती है इन द मैनर, इन द वे शी लाइक्स। जो आपका 14(2) है, दैट इज डीलिंग विद रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट। रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट का क्या मतलब है? कि जरूरी नहीं है कि फीमेल के पास कोई प्रॉपर्टी उसको किसी राइट की वजह से मिली हो। अगर वो प्रॉपर्टी फीमेल को मिली है अंडर सम डॉक्यूमेंट, उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था, किसी ने अपने आप वॉलंटरली दी है, और उसमें रिस्ट्रिक्शंस इंपोज है, तो वो उस प्रॉपर्टी की फुल ओनर नहीं बनेगी। वो प्रॉपर्टी उसे लेनी पड़ेगी सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस। अब फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड का ब्रदर है, ब्रदर्स विडो, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है,
तो हस्बैंड के ब्रदर ने बच्चों को प्रॉपर्टी ना देकर विल बना दी इन फेवर ऑफ विडो, और विल में लिखा कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं वो इस प्रॉपर्टी में से 50,000 ईच देती रहेगी एवरी मंथ फॉर देयर मेंटेनेंस। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट है, जब उसे विल से प्रॉपर्टी मिली है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं बनेगी, क्योंकि कोई उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था। जो डॉक्यूमेंट ने, अगर दो पार्टीज अपनी मर्जी से कोई ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो वो उसे प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन। अब लोग क्या चालाकी दिखाते थे, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का लिमिटेड एस्टेट है, सॉरी हस्बैंड की डेथ हो गई है 1937 के बाद, फीमेल का लिमिटेड एस्टेट है, उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, 1 कनाल का घर उसके पोजेशन में है। चालाकी करी को पार्टनर्स ने, हस्बैंड के ब्रदर्स ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट में क्या लिखा कि प्रॉपर्टी आप हमें हैंड ओवर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का जो रेंट है उसमें से हम आपको 5,000 देते रहेंगे, और आप जिस पोर्शन में रह रहे हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं। ये चालाकीपन है। अब चाहे आपने लिटरली 14(2) में रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, पर प्रॉपर्टी की वो एब्सोल्यूट ओनर ही बनेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसको दी गई है इन ल्यू ऑफ हर प्री एग्जिस्टिंग राइट। लोग चालाकी दिखाकर उसके प्री एग्जिस्टिंग राइट को, जो कि फुल ओनरशिप में कन्वर्ट होना था अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बाय डाइवर्टिंग इट्स मोड बाय रिजॉर्टिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। फिर से बेटा अब रेफर करो, अब हम इसको रीड करेंगे, अब ये क्लियर हो जाएगा। प्रोविजन फॉर रेजिडेंस में बी मेड either by giving a lump sum in money or property in lieu thereof. It may also be made by providing for the course of the lady's life a residence and money for the necessary expenditure. इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। Where provision is made in this manner by giving a life interest in property for the purposes of residence, इसका मतलब ब्रदर ने एग्रीमेंट में लिखा कि प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी, आप एग्रीमेंट कर लो कि आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आप एंजॉय करोगे और आपकी डेथ के बाद हमें मिल जाएगी। आप उसके राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो 14(1) में उसकी फुल ओनर बनेगी ही बनेगी। Where provision is made in this manner by giving a life interest in property for the purposes of residence, that provision is made in lieu of a pre-existing right to maintenance, and the Hindu lady acquires far more than the vestige of title which is deemed sufficient to attract section 14 subsection 1। क्लियर है? इसका मतलब वो राइट ऑफ रेजिडेंस की भी फुल ओनर बनेगी। तो यहां पर हमने कहा मेंटेनेंस इंक्लूड्स इवन रेजिडेंस। प्लीज नेक्स्ट केस को रेफर कीजिए। यस, बोल बेटा। यस, खत्म हो जाए बेटा, पर वो फिर इक्विटी भी है ना। अगर आप जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो हस्बैंड का शेयर है, अगर वो इक्विवेलेंट सम उसको दे रहे हैं, फिर तो लॉ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आपका 1 कनाल का हाउस है, अगर वो इतने रिच हैं और आप विडो को या 1 या 2 करोड़ दे रहे हैं, फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। पर वो गलत है, खुद आपने 1 कनाल की कोठी ले ली उसके पोजेशन से और फिर आप उसको 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं, तेरी मेंटेनेंस के लिए इतना काफी है। ये नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी की फुल ओनर ही बनेगी। क्योंकि जब हम सेक्शन 14 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के केसेस करेंगे, लोग ओवर क्लेवर एक्ट करते हुए विडो के फुल ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, पर कोर्ट ने इस सेक्शन को फुल स्कोप दी है, फुल कहते हैं ब्रॉडेस्ट इंटरप्रिटेशन दी है। वो कहते हैं सेक्शन 14(1) में उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट है।
अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसे प्री एग्जिस्टिंग राइट के अंडर मिली है तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बाय डाइवर्टिंग दैट राइट बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। तो हमें तो देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी उसे मिली है ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग राइट या डॉक्यूमेंट की वजह से ही प्रॉपर्टी मिली है। अगर उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट है शी विल बी अ फुल ओनर। अगर वो डॉक्यूमेंट ने राइट क्रिएट की है तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। कुछ पूछने आपने? यस। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट जजमेंट को हम रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट जजमेंट को हम रेफर कर रहे हैं जो कि है बी पी अचला आनंद वर्सेस एस अप्पी रेड्डी। एस अप्पी रेड्डी ये 2005 का जजमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सौरभ रीड कर बेटा, इसको रीड करना। अखिल रीड कर बेटा। A husband-wife is entitled to be maintained by her husband. She is entitled to remain under his roof and protection. ये अंडर करो, अंडरलाइन करो। She is also entitled to separate residence if by reason of husband's conduct or by refusal to maintain her in his own place of residence or for the other just cause she is compelled to live apart from him। इसका मतलब अगर अपने घर में जगह नहीं दे सकते तो आपको सेपरेट प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर हर मेंटेनेंस। ये अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट टू रेजिडेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस। द राइट टू मेंटेनेंस कैन नॉट बी डिफीटेड बाय हस्बैंड एग्जीक्यूटिंग अ विल टू डिफीट सच अ राइट। इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड को प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, वो क्या बना रहा है, विल बना रहा है, तो वो उसका राइट डिफीट नहीं कर सकता। आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा वाइफ के रेजिडेंस के लिए। ठीक है प्लीज। मैम अगर वाइफ को गिफ्ट मिला है या कोई मतलब विल से प्रॉपर्टी लिया है, किससे? हस्बैंड से, ओके, उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी उसकी फैमिली को या जस्ट प्रॉपर्टी सफिशिएंट होगी? नहीं बेटा, क्योंकि जब आप हम विडो डॉटर इन लॉ की मेंटेनेंस पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है तो हमने देखना है क्या उसको अपने हस्बैंड से, वाइफ को अपने फादर से, या वाइफ को अपने मदर से, या अपने लड़के या लड़की से कोई प्रॉपर्टी मिली है जिससे वो मेंटेनेंस अपना कर सकती है। अगर इसका आंसर है यस, तो फादर इन लॉ पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू मेंटेन विडोड डॉटर इन लॉ। फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन तभी है अगर को पार्सनली प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी को पार्टनर था और उसमें से उसको शेयर नहीं दिया गया वाइफ को। अगर को पार्सनली प्रॉपर्टी में से फादर इन लॉ ने वाइफ को शेयर दे चुका है जो कि अब विडो है, तब भी फादर इन लॉ की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम जो सक्सेशन का सेक्शन 14 पढ़ते हैं वो विडो को नहीं रखते, तो वो सारी डिवोर्स के बाद भी जो वुमन है उसको रेफर करता है। हाँ बेटा, अगर उसको प्रॉपर्टी मिल गई है तो हस्बैंड पे लायबिलिटी होती है फिर मेंटेन करने आफ्टर डाइवोर्स। बेटा जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 14 की, सेक्शन 14 में तो हमने प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ फीमेल को वाइडन किया, क्योंकि फीमेल्स को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी तो हमने उनको प्रोप्राइटरी राइट्स कन्फर किए हैं। सक्सेशन तो आपका सेक्शन 15 में है, और वो क्यों किए, क्योंकि 1956 के टाइम पर फ्रेमर्स को पता था कि 1937 में एक्ट है जहां पर लिमिटेड एस्टेट का सिर्फ राइट है और तो कोई उसके पास प्रॉपर्टी है नहीं। इंटरस्टेट सक्सेशन फीमेल का तो उसकी डेथ के बाद होगा। अब ये भी हो सकता है हस्बैंड की एक्ट के बाद डेथ हो या एक्ट से पहले की डेथ हो चुकी हो। जहां पर बाद में डेथ होगी वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाइफ क्लास 1 हेयर है, विडो क्लास 1 हेयर है हस्बैंड की, तो क्लास 1 हेयर से उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
पर हम उन वाइव्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो अब विडोज बन चुकी हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ 1937 के बाद हुई है और वो लिमिटेड एस्टेट है। जब हम प्रोप्राइटरी राइट कन्फर कर रहे हैं तो कोर्ट कहता फिर हमने क्यों उन वुमेन्स के अगेंस्ट बायसनेस रखना है, जो कि विडो जो लिमिटेड ओनरशिप में प्रॉपर्टी को जिन्होंने रिटेन किया हुआ है, तो उन्होंने उनको भी फुल ओनर बना दिया। अब अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं ये पूछ रहा था, जैसे जहाँ पे वीडियो नहीं है, जहाँ पे मतलब वाइफ और हस्बैंड भी जिंदा होता है, ठीक है, डिवोर्स हो गया, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी राइट ले लिया, प्रोप्राइटरी राइट, बेटा सेक्शन 14 वहां इफेक्टिव नहीं होगा, वहां नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 14 उन ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई करता है जो कि विडो ने या वाइफ ने, हिंदू फीमेल ने, जहां प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसके पोजेशन में है, या तो बिफोर इवन बिफोर 1957 या आफ्टर 1957। आफ्टर 1957 में तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी जो उसे मिलेगी, चाहे वो सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी में मिल जाए, उसे जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो उसकी फुल ओनर बनेगी। बात तो उन ट्रांजैक्शंस की थी जो उसे 19, बिकॉज इसमें बेटा मेंटेनेंस वर्ड भी यूज है आपके सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन में, तो अगर उसे मेंटेनेंस के लिeu में कुछ भी मिल रहा है उसकी वो फुल ओनर ही बनेगी। तो ये भी तो मेंटेनेंस के एवज में ही मिल रहे हैं ना बेटा, इसलिए। कुछ पूछने आपने? क्या कर रहे थे? हो गया था बेटा। एक ना केस इसमें आप मार्क करो, ये आपके प्रीलिम्स में पूछने लायक जजमेंट है। चांद धवन धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन। रमेश्वरी रमेश चंद्र डागा के केस में, यस ये जजमेंट है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, साइटेशन लिख लीजिए 1993 SCC वॉल्यूम 3 406। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस के फैक्ट्स इसमें नहीं है, प्लीज आप केस के फैक्ट्स लिख लीजिए। अब हम जो डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कशन के बाद अब हमें क्लियर है कि सेक्शन कहां पर अप्लाई करेगा और कहां पर अप्लाई नहीं करेगा। प्लीज आप केस के फैक्ट्स लिख लीजिए। मैरिज सोलमनाइज्ड, in 1975, in 1982 petition was filed for mutual divorce at Amritsar, wife pleaded that she is not a consenting party. She is not a consenting party to the petition. She is not a consenting party to the petition. Hence, petition was dismissed. Thereafter, husband filed petition for divorce
on the ground of petition for divorce, on the ground of adultery, on the ground of adultery, on the part of wife, adultery on the part of the wife. She claimed maintenance under section 24, under section 24 and 25 of Hindu Marriage Act 1955. बेटा मैं आपको आपके ना ग्रुप में सेंड कर रही हूँ रेलेवेंट क्वेश्चन, वो आपको मिल जाए। आप उसमें नाम लिख लीजिए रजिस्टर पे, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन। अब यहां पर कोर्ट कहता कि सेक्शन 24 में तो हमने दे दिया, क्या सेक्शन 25 में इस टाइम पर हम मेंटेनेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते? वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैरिटल स्टेटस तो अफेक्ट ही नहीं हुए, कोई हमने डिग्री पास नहीं की है, तो कैसे हम सेक्शन 25 का बेनिफिट दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि सेक्शन 25 का बेनिफिट तभी अवेल हो सकता है अगर मैरिटल स्टेटस अफेक्ट हुआ हो, और इसके लिए उन्होंने सेक्शन 41 का हेल्प लिया एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 41 कहते हैं जो मैरिटल जो मैट्रिमोनियल डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं, दे आर जजमेंट्स इन रेम, क्योंकि वो कोई लीगल स्टेटस या तो कन्फर कर रही हैं या डिप्राइव कर रही हैं। तो अगर जो उसमें जजमेंट्स हैं, अगर मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में कोई जजमेंट या डिक्री ही पास नहीं हुई है तो आपका कोई लीगल स्टेटस में चेंज नहीं आया है, तो वहां पर आपको सेक्शन 25 का रिलीफ नहीं मिलेगा। बेटा रीड कर इसको, जो आपको मोबाइल में सेंड किए, रीड कर बेटा इसको। Yes. In other words, without the marital status being affected or disrupted by the matrimonial courts under the Hindu Marriage Act, the claim of permanent alimony was not to be valid as ancillary or incidental to such affection or disruption. The wife's claim to maintenance necessarily has then to be agitated under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, which is a legislative measure later in point of time than the Hindu Marriage Act 1955. They are through part of the same socio-legal scheme revolutionizing the law applicable to Hindus. Section 41 of the Indian Evidence Act inter alia provides that the final judgment, order, or decree of a competent court in the exercise of matrimonial jurisdiction, which confers upon or take away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to such character is relevant, and that such judgment, order, or decree is conclusive proof as to the conferral, accrual, or taking away of such legal character from a point of time as declared by the court. Such judgment are known as judgments in rem. Judgments in rem, ये सेक्शन 41 में, आगे रीड कर बेटा। Binding the whole world.
But the judgment of that kind must have done something positive onwards. That this provision is indicative of the quality of matrimonial jurisdiction we have thus in this life. No hesitation is coming to the view that when by court intervention under Hindu Marriage Act, affection or a disruption to the marital status has come by, at that juncture, which passing the degree is undoubtedly has the power to grant permanent alimony or maintenance. If that power is invoked at the time, it also retains the power subsequently to be invoked on application by a party entitled to relief, and such order in all events remain within the jurisdiction of that court, to be altered or modified as future situation may warrant. In contrast, without affectation or disruption of the marital status, a Hindu wife ये important है बेटा. Without disruption or affecting the marital status of the parties, the remedy under section 25 cannot be availed. Read कर बेटा. Without disruption of the marital status, a Hindu wife sustaining that status can live a separation from her husband, and whether she is living in that state or not, her claim to maintenance stands preserved in codification under section 18 clause 1 of the Hindu adoption and ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट कहते हैं अगर तुझे मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए तो तू क्यों 25 के अंडर जाना चाहती है? क्योंकि 25 तो एंसिलरी रिलीफ का सेक्शन है, वो तभी मिलेगा अगर आपको मेन रिलीफ मिलेगा. अगर आपको मेन रिलीफ ही नहीं मिल रहा तो एंसिलरी रिलीफ का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, क्योंकि हमने किया, हम इसको डिपेंडेंट रिलीफ कहते हैं. अगर आपको सिर्फ मेंटेनेंस ही चाहिए तो आप क्यों यहाँ पर 25 में नॉक कर रहे हैं? दिस टाइम you should have filed petition under section 18 subsection 1 of Hindu Adoption and Maintenance Act, where maintenance was an independent relief under that act. आगे read कर बेटा. The court is not at liberty to grant relief of maintenance simply cedar obtainable under one act in proceedings under the other. As it evident, both the statutes are codified as such and are clear on the subject, and by liberty of interpretation, interchangeability cannot be permitted so as to destroy the distinction of the subject of maintenance. वो कहते हैं दोनों स्टैट्यूट की स्कीम डिफरेंट है. अगर आपने 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर केस डाला है, हम एक्ट की स्कीम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि चलो मेंटेनेंस दिए चाहिए 18 की जगह हम 25 में दे देंगे. नहीं, क्योंकि एक्ट की स्कीम कहती है एंसिलरी रिलीफ डिपेंडेंट रिलीफ है तभी अवेलेबल होंगे अगर मेन रिलीफ मिलेगा. और अगर मेन रिलीफ ही नहीं मिला है, मैरिटल स्टेटस अफेक्ट ही नहीं हुआ है, एंसिलरी रिलीफ का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा. द पार्टी शुड हैव अप्रोच्ड अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आपका सेक्शन 26. नेक्स्ट है आपका सेक्शन 26, that is pertaining to children. Pertaining to children. Bear it नहीं काटो. हाँ जी, जब हमने इसकी बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट है जितने भी बच्चों से प्रिटेनिंग कस्टडी के प्रोविजंस हैं, जजमेंट्स किसी भी एक्ट में हो, प्रिंसिपल सेम रहते हैं. तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर कस्टडी से पर्टेनिंग इश्यूज हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स कोर्ट अप्लाई करती है. तो जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी, व्हाट इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन इन कस्टोडियल मैटर्स? वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन. ये आपका गवर्निंग प्रिंसिपल है, चाहे लिटिगेशन आपके सेक्शन 26 में हो, चाहे लिटिगेशन आपके हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में हो, चाहे वो इंटर कंट्री एडॉप्शन है अंडर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, चाहे वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में सर्टिफाइड गार्डियन अपॉइंट करने के लिए प्रोसीडिंग्स हो. सब में जो गवर्निंग प्रिंसिपल है वो यही है, वेलफेयर ऑफ द माइनर इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन. जब सेक्शन 26 क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहे हैं तो बच्चों को हम उनसे सेपरेट नहीं कर सकते. तो बच्चों का एंसिलरी इशू है,
जो साथ में रहेगा। तो जब हम एंसिलरी इश्यू की बात कर रहे हैं, एंसिलरी के लिए हमें सेपरेट लिटिगेशन में ना जाना पड़े, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन में ना जाना पड़े, हमने क्या किया, एंसिलरी रिलीफ में ही कस्टडी का मैटर भी प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको कस्टोडियल मैटर एक एंसिलरी रिलीफ की तरह अवेल करना है टुगेदर विद द मेन रिलीफ, तो पिटिशन लाई करेगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर हस्बैंड वाइफ में सिर्फ बच्चे की गार्डियनशिप को लेकर डिस्प्यूट है, कोई मैट्रिमोनियल रेमेडी नहीं चाहिए, तो पिटिशन लाई करेगी अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, प्लीज सेक्शन 27 को रेफर कीजिए। सेक्शन 27 रीड कर बेटा Disposal of property. ना 26 सॉरी 27 है 6। Custody of children. Yes. In any proceeding under this act, the court may, from time to time, pass such interim order and make such provisions in a decree as it may deem just and proper, with respect to the custody, maintenance and the education of minor children, constantly with their wives' wishes, whenever possible, and may, after decree, upon application by petition for. बेटा इसमें आप मार्क कीजिए प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। कोई भी प्रोसीडिंग्स हो सकती है 9 to 13 के बीच में। पास सच इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स को अंडरलाइन कर लो, बिकॉज कस्टडी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, कस्टडी परटेनिंग ऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे हमेशा इंटरिम ही होते हैं। क्यों? यस, इवन आपका अगर कस्टडी ऑर्डर आपने माइनॉरिटी गार्डियनशिप के में भी लिए है, वो भी हमेशा इंटरिम ही रहता है, क्योंकि कभी भी अगर गार्डियन ने बच्चे के अगेंस्ट एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो सेकंड स्पाउस है, जो शायद स्पाउस ना हो पर पेरेंट तो है ही, तो मदर और फादर एज द केस में भी दे कुड अप्रोच कोर्ट फॉर अल्टरेशन ऑफ द ऑर्डर। इसलिए कोर्ट कहते हैं जितने भी कस्टडी परटेनिंग ऑर्डर्स हैं दे आर ऑलवेज इंटरिम इन नेचर। आगे रीड कर बेटा। And make such provisions in a decree as it may deem just and proper with respect to the custody. ये बेटा आपके ना प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 मैटर्स हैं, कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन। कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन, क्योंकि उसमें पूछा हुआ था कि सेक्शन 27 में कौन कौन से मैटर्स कवर होते हैं, तो हेड नोट में तो कस्टडी है, तो कस्टडी था, सब था, ऑल ऑफ द अबव भी था, तो वहां पर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा अगर सारे हैं, नहीं तो जो भी मेंशन है, कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन इसमें स्पेसिफिक मेंशन है। आगे रीड कर Constantly with their wishes, whenever possible, and may, after a decree, upon application by a petition for a purpose, made from time to time. All such orders and provisions with respect to the custody, maintenance, and education of such children as might have been made by such decree or interim order, in case the proceedings from obtaining such decree was still pending. अगर डिक्री में भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि बच्चे का कस्टडी किसके पास रहेगा, वो भी फाइनल नहीं है, इट कुड बी ऑल्टर, और पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग के टाइम तो इंटरिम ऑर्डर है ही, तो तब तो कभी भी ऑल्टर हो सकता है। आगे बेटा। And the court may also from time to time revoke. अंडरलाइन कर लीजिए, रिवोक, सस्पेंड और वेरी एनी सच ऑर्डर्स एंड प्रोविजंस प्रीवियसली मेड। आगे रीड कर बेटा। Provided that the application with respect to the maintenance and education of the minor children pending their proceedings for obtaining such decree shall as far as possible be disposed within 60 days from the date of service of notice on the respondent. Yes. इसके लिए जो जजमेंट हमने करनी है वो विक्रम वीर वोहरा वर्सेस शालिनी भल्ला की है। ये आपको आपके कमेंट सेक्शन में भी मेंशन्ड है, पर वो इतना क्लियर नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखकर छोड़ दी है, जो रियल इशू था जजमेंट में वो हमें पता नहीं चलता बाय रीडिंग द कमेंट। अखिल फिर भी कमेंट तो रीड कर बेटा, आपके कमेंट्स में है वेयर एक्ट में विक्रम वीर वोहरा वर्सेस शालिनी भल्ला का जजमेंट है। अच्छा चलो फिर अमेंडेड में है, मैं आपको रीड कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन इन मैटर्स रिलेटिंग टू चाइल्ड कस्टडी एंड टू बी गिवन अ प्राइमेसी इवन ओवर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। विक्रम वीर वोहरा वर्सेस शालिनी भल्ला। पर रियलिटी में जजमेंट इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा है,
क्योंकि फैक्ट्स में कुछ ऐसे ग्लेरिंग फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें जजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि दोनों पार्टीज ने क्या प्ली लिया। बेटा फैक्ट्स लिखिए, साइटेशन लिख लीजिए, उसमें साइटेशन नहीं है। विक्रमवीर वोरा वर्सेस शालिनी भल्ला, AIR 2010 SC 1675, 2000 AIR 2010 SC 1675। फैक्ट्स लिखिए। मैरिज इन 2000, मैरिज इन 2000, child born in 2002, divorce by mutual consent in 2006। और जब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लिया, पार्टीज ने अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट ऑलरेडी एंटर कर चुके थे और कोर्ट को तो जरूरत ही नहीं पड़ी कस्टडी के इश्यू पर एडजुडिकेट करने की, क्योंकि पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि बच्चा रहेगा मदर के साथ, फादर को दिए विजिटेशन राइट। अखिल रीड करना क्या लिखे अभी। divorce by mutual consent in 2006. Yes, by settlement agreement between parties, custody of child given to mother and right of visitation to father, and right of visitation to father। Husband filed application under section 26 for modification as wife was taking child to Australia, and it would result in revocation of visitation rights of father। Husband claimed permanent custody of the child as it is not in the interest of the child, to leave India permanently। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने क्या ऑर्डर दिया कि वाइफ लेकर जा सकती है, पर उसे साल में 2 बार इंडिया लेकर आना पड़ेगा बच्चे को मिलवाने के लिए। इसमें लिख लीजिए, ट्रायल कोर्ट passed orders that wife could take the child to Australia, but had to bring back child back to India twice। Twice a year. Yes, husband approached High Court,
where wife took plea that as parties have already entered into settle agreement, it cannot be disputed in the court. कि आपने एक बार एग्री कर लिया कि बच्चा वाइफ के पास है तो आप मदर के पास है तो आप उसको अब डिस्प्यूट नहीं कर सकते. बट हाई कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्ली and held that court can pass suitable orders from time to time. Court can pass suitable orders from time to time. Even if there is no mention about it, even if there is no mention about it under DBMC, divorce by mutual consent की बात कर रहे हैं, even DBMC, even then party could file again under section 26 of Hindu Marriage Act. Party could file again under section 26 of Hindu Marriage Act. And ultimately, matter reached Supreme Court. And Supreme Court held. Read करना बेटा, first paragraph है document. In a matter, Yes. in a matter relating to custody of child, this court must remember that it is dealing with a very sensitive issue in considering the nature of care and affection that child requires in a growing stage of her or his life. That in why custody order are always considered interlocutory orders. Custody orders कभी finality attain करते ही नहीं, चाहे पार्टी एग्रीमेंट में कह दे कि हमने एग्री कर चुके हैं, but they never attain finality. आगे बेटा. And by the nature of such proceeding, custody order cannot be made legit and final. इसी वजह से कस्टडी ऑर्डर्स कभी भी फाइनल नहीं करता कोर्ट, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसा चेंज होता है इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इज एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कोर्ट उनमें चेंज कर सके. आगे रीड करें. They are capable of being altered and molded, keeping in mind the needs of child. यस, क्लियर है. और इसलिए उन्होंने कहा कि जो कस्टडी ऑर्डर्स हैं दे आर ऑलवेज इंटरिम इन नेचर, और कोई भी पार्टी किसी भी स्टेज पर कोर्ट को अप्रोच कर सकती है इसके मॉडिफिकेशन के लिए. बेटा जो इसके नीचे के केसेस हैं, गौरव नागपाल, धनवंती जोशी, रोजी जैकब एंड जैकब ए चक्रमल, आप रीड कर लेना. बट ऑल दीज केसेस वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाइल डूइंग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, बिकॉज ये सारे गार्डियनशिप के अंडर एक लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो डिटेल में हम उसको वहां पर डील करेंगे. यहाँ पर आप उसको रेफर कर लेना, बिकॉज सब में डिस्कस्ड है. वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ द पैरामाउंट कंसिडरेशन. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज गवर्निंग द कस्टोडियल मैटर्स इन द कोर्ट. कोई डाउट तो पूछिए. ओके बेटा, चाइल्ड मदर के पास ही था, मदर के पास ही था. क्यों? बच्चे को इंटरव्यू किया गया कोर्ट में, और वहां पर बच्चा ने अपना जो, क्योंकि 7-8 इयर्स का किड था, उसने अपनी विशेस एक्सप्रेस की कि मैं मदर के साथ ही रहना चाहता हूँ. तो वैसे भी जब हमने बच्चा शुरू से मदर के साथ है तो मदर के साथ उन्होंने रखा, पर वो फिर कहते कि फिर विजिटेशन राइट्स फादर के वो उसमें फिर वो कहते हैं कि हम, क्योंकि उन्होंने ये जो मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट पर्टेनिंग कि केस का डिसीजन करो, वो तो लोअर कोर्ट में ही चल रहा है. इन्होंने तो ऑब्जेक्शन दिया कि कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकती क्योंकि हम ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं. कोर्ट ने कहा नहीं, इंटरफेरेंस पॉसिबल है क्योंकि आपका जो ऑर्डर है दैट इज ऑलवेज इंटरिम इन नेचर. और जो इसमें फिर कोर्ट कहता, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ. इन द इंस्टेंट केस द डिवोर्स वाज ग्रांटेड
on mutual consent. The court, considering the fact that child who is about 8 to 10 years of age and is in a very formative and impressionable stage in his life, has expressed his desire to live with the mother, and the fact that rights to develop is a basic human right of every person, and that right of mother cannot be curtailed on the ground of a prior order of custody of the child, modified visitation rights of the father, despite the fact that custody and visitation rights were not reflected in the divorce decree. Clear it, please? कोई डाउट है तो पूछिए. इसके बाद हमारा लास्ट प्रोविजन रहता है रिलेटिंग टू एंसिलरी रिलीफ, जिसको हम सेक्शन 27 में रेफर करेंगे. मैम अगर कस्टमरी डाइवोर्स में एज सच कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पे 26 को इन्वोक कर सकते हैं. किसमें? अगर कस्टमरी डाइवोर्स लिया पार्टीज और एज सच कोई एग्रीमेंट हुआ है बेटा, पर आपने इसके अंडर थोड़ी ना मैट्रिमोनियल रेमेडी ली है. यस, उसके लिए फिर गार्डियनशिप और व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा. यस, आप वहाँ फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपने एक्ट की बात कर रहे हैं ना बेटा. इसका डिसीजन है बेटा. In the application dated filed before Additional District Judge Delhi, the mother made it clear that she is ready to furnish any undertaking or bond in order to ensure her return to India and to make available to the father his visitation rights subject to the education of the child. This court finds that so far as the order which had been passed by the High Court affirming the order of the trial court, the visitation rights of the appellant father have been so structured as to be compatible with the educational career of the child. This court finds that in this matter judicial discretion has been properly balanced between the rights of husband and जो father and mother. तो उन्होंने फिर वो अफेक्ट जजमेंट को चेंज नहीं किया. बच्चा मदर के साथ जा सकता है. फादर के विजिटेशन राइट को ऐसे उन्होंने वहाँ बैलेंस कर दिया, जो भी प्रोविजन बनाया कि बच्चे का एजुकेशन भी अफेक्ट ना, और फादर यहाँ मदर उसको यहाँ पर लेकर आगे जाएगी. ठीक है प्लीज. हाँ जी, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 27, सेटलमेंट ऑफ spousal property. Settlement of spousal property. Settlement of spousal property. Section 27 है. ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. प्लीज सेक्शन रीड कर बेटा. Section 27. Section 27. Disposal of property. Yes. In any proceedings under this Act, the court may make such provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of marriage, which may belong jointly to the both husband and wife. Yes. बेटा इसमें अंडरलाइन कीजिए. In any proceedings under this Act. वो ऑब्वियस है, एंसिलरी रिलीफ है, तो सब उसकी बात कर रहे हैं. Property presented at or about the time of marriage. Property presented at or about है, ये important है आपके प्रीलिम्स के लिए. At or about the time of marriage, presented jointly to both husband and wife. Presented jointly to both husband and wife. इसमें कभी स्त्री धन कवर नहीं होता. इसमें कभी भी स्त्री धन कवर नहीं होता. तो जब हमने बात की है प्रॉपर्टी की, तो इस केस में कभी भी हम स्त्री धन को कवर नहीं कर रहे, बिकॉज स्त्री धन इज प्रॉपर्टी जो किसको दी है? वाइफ को दी है. वाइफ इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी which is jointly given to husband and wife
कब दिए? एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। अब ऐसा नहीं कि शादी के बाद अब जितने भी गिफ्ट होंगे सब इसमें अब आ जाएंगे। हमने क्या टाइम लिए? एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। इंपॉर्टेंट कंडीशन है जॉइंटली। अगर किसी एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को गिफ्ट किया था, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 27, बिकॉज वही प्रॉपर्टी कवर होगी विच इज जॉइंटली गिवन टू बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। अखिल रीड कर लेगा। कमेंट्स में संगीत बालकृष्ण कदम का केस है, उसको रीड करना। आपका है, रीड कर दो। Section 27 is restricted only when the property presented at or about the time of marriage is alleged to belong jointly to both of the spouses. Section ये अंडरलाइन कीजिए। Section 27 can only relate to a limited class of property that is owned jointly by the spouses which has been presented at or about the time of marriage. It is not permissible to bring in property brought after marriage, underline कर लीजिए, as it would expand the scope of section 27. Held that jewelry presented at the time of marriage comes within section 27 of the act, पर ज्वेलरी के केस में स्त्री धन नहीं कवर होगा, जो ज्वाइंटली दिए वही उसमें कवर होगा। But furniture brought after the marriage would not come within section 27 of the act. तो अब वो केस टू केस वेरी करेगा कौन सा प्रॉपर्टी आएगा और कौन सा नहीं आएगा। क्लियर है प्लीज? क्लियर है प्लीज? अब फॉर एग्जाम्पल, अब लेडीज हैं, वो क्या करते हैं कि मैरिज हो गई है, सेटलमेंट में प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लॉन्च करा देते हैं, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लिखवा देते हैं, तो पुलिस सारी की सारी आकर वो आर्टिकल्स उठाकर घर से ले जाती थी हस्बैंड के घर पर। प्रोविजन बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि लेडी फेयर एक्ट नहीं कर रही है। अब ये किसको पता है कि जो आर्टिकल्स हैं वो लेडी लेकर आई है या घर के आर्टिकल्स हैं? क्यों? क्योंकि अब इसके लिए प्रूफ तो चलो बाद में की बात आएगी, पर उस टाइम तो हरासमेंट हो ही जाती थी। और इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट्स क्या पास किए हैं? गाइडलाइंस पास की हैं कि अगर कोई 498A द ग्रॉसेस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन ऑफ आईपीसी बनाया गया था डिफेंस के लिए पर बन गया है वेपन ऑफ ऑफेंस, तो उसको कब अवेल करना है, और पुलिस को गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि आपने कब प्रोसीड करना है, क्या क्या सेफगार्ड्स आपने देखने हैं। तो जब हम कह रहे हैं सेटलमेंट ऑफ स्पाउसल प्रॉपर्टी, सिर्फ वही प्रॉपर्टी कवर होगा विच इज जॉइंटली ओन्ड बाय हस्बैंड एज वेल एज वाइफ एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। अब आप मुझे बताइए, अगर वाइफ है, वाइफ MBA है फ्रॉम IIT दिल्ली, उसने फीमेल की एक बिजनेसमैन से, नाउ शी इज हाउसवाइफ, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, शी क्लेम्ड मेंटेनेंस। उसने, वो कह सकता है बिजनेसमैन कि वो क्या है, वेल क्वालिफाइड फीमेल है, इसको अपना मेंटेनेंस शी इज कैपेबल ऑफ अर्निंग हरसेल्फ। इज दिस प्लीज सस्टेनेबल? नहीं बेटा, इसके लिए जजमेंट है, वो आप लिख लीजिए, बिकॉज जजमेंट अभी इवन नेट पर भी पूरी अवेलेबल नहीं है। हाँ बेटा, मेंटेनेंस के लिए हम मेंटेनेंस के कंसेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं। 20 वैसे जजमेंट तो 125 के अंडर की है,
वैसे 125 की है, पर क्यों मेंटेनेंस तो हर जगह सेम ही है ना बेटा, चाहे आप इंटरिम मेंटेनेंस मांग रहे हैं चाहे परमानेंट एलिमनी, इसमें आप लिख लीजिए। आर डी राजीव वर्सेस रूपा, कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन है। आर डी राजीव, RAJEEV, आर डी राजीव वर्सेस रूपा। इसमें आप हेडिंग लिख लीजिए बेटा, आपको मैं उस पर आर्टिकल सेंड कर दूंगी आपके हम ग्रुप में, क्लियर है। मेयर पोजेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेयर पोजेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन does not mean that wife is able to maintain herself. Giving maintenance to the wife, is not merely a pleasure for the husband, rather it is a duty of the husband to maintain his wife who herself is unable to maintain, who या herself पहले काट दीजिए बेटा, who is unable to maintain herself, कोई डाउट है तो पूछिए, बेटा कुछ पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लिव इन रिलेशनशिप। ओके, जब बेटा हम कह रहे हैं सेटलमेंट ऑफ स्पाउसल प्रॉपर्टी, अब फॉर एग्जाम्पल आजकल ये रिवाज हो गया है कि लड़का जज है, ये रियल केस है, पेरेंट्स ने पंचकूला का जो घर है वो लड़का और लड़की को जॉइंटली गिफ्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डियर है, प्रॉपर्टी के रेट्स हाई हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कि 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी होगी। अब उनका इंटेंशन क्या था? अगर प्रॉपर्टी है वाइफ के नाम पर तो वो ऑब्वियस है वाइफ की होगी। अगर प्रॉपर्टी दोनों को जॉइंटली दी गई है इन देयर जॉइंट नेम, अब उसका सेटलमेंट होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ द डिवोर्स कि वो किसको बिलोंग करेगी। तो हम ऐसी स्पाउसल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे लड़के के पेरेंट्स ने इन ल्यू ऑफ मैरिज एक अपार्टमेंट खरीद कर दे दिया DLF में हस्बैंड और वाइफ को। अब इस प्रॉपर्टी का सेटलमेंट होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। या फिर दोनों पेरेंट्स ने FD बनाई जॉइंटली इन नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 50 लाख रुपीस की। अब इसका सेटलमेंट होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। तो ऐसा नहीं कि कोई FD को अफेक्ट करेगा, तो जब वो सेटल करते हैं तो उन्होंने देखना होता है मोर और लेस इक्विटेबल होना चाहिए। तो दोनों को वो या तो मॉनेटरी वैल्यू में कंपनसेट कर दे, अगर हस्बैंड है उसने सारी रखनी है FD तो वो वैल्यू दे देगा, तो कोई सेटलमेंट होना चाहिए। तो कोर्ट इस तरह से सेटलमेंट पर पहुंचती है। अब फॉर एग्जाम्पल लड़के के पेरेंट्स ने तो दी तांबे की अंगूठी और लड़की के पेरेंट्स ने दी हीरे की अंगूठी।
वो इसमें कवर नहीं होगी, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है विच इज जॉइंटली गिवन टू हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर है प्लीज? अब लड़का कहे जी मंगलसूत्र पहनाया था, सेटलमेंट करो, नो, ये तो नाम से ही क्लियर है, मंगलसूत्र कभी भी जॉइंट प्रॉपर्टी में नहीं आता, रेदर वो वाइफ का क्या है, स्त्री धन है, शी इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो हमें इंटेंशन देखना पड़ेगा बेटा, जहां पर इंटेंशन क्लियर है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि कोठी वाइफ के नाम पर है, हस्बैंड कह रहा है क्यों भाई, अब वो तो एब्सोल्यूट ओनर है, तो वो नहीं, हमने देखना है विच इज जॉइंटली बिलोंगिंग टू हस्बैंड एंड वाइफ। और जो पार्टी अलेज कर रही है कि प्रॉपर्टी जॉइंटली बिलोंग कर रही थी, उसको ये फैक्ट प्रूव भी करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब jointly की बात करते हैं husband wife, अगर जो भी property रखता है फिर दूसरी पार्टी को उसे देना फिर पड़ेगा। ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी तो ऐसे डिवीजन 50-50 कर फायदा नहीं है, तो या तो आप मॉनेटरी कंपनसेशन दे देते हैं या प्रॉपर्टी का ही शेयर कर लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर इसको चला जाएगा, ऊपर के दो इसको चला जाएगा। तो किसी भी तरह का सेटलमेंट होना चाहिए। या फिर अगर कोई सेटलमेंट नहीं पहुंचता, फिर क्या होता है, कोठी को सेल के लिए लगा देते हैं, तो जो भी सेल प्रोसीड्स आते हैं फिर दोनों उसमें से ले लेते हैं, तो कोई तो उसमें सेटलमेंट हो ही जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का जॉब हो गया बैंगलोर में, उसका क्या इंटरेस्ट होगा पंचकूला के घर में, तो वो फिर पार्टीज डिपेंड करते हैं अपॉन फैक्ट्स एंड सिचुएशन की वो किस सेटलमेंट पर एग्री करते हैं अल्टीमेटली। ठीक है प्लीज? हाँ जी, कुछ पूछते हैं आपने? क्लियर है बेटा? आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा लिव इन रिलेशनशिप। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव इन रिलेशनशिप अभी तक हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट नहीं है, पर क्यों इसकी इतनी सिग्निफिकेंस हो गई है, इसका रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब हमने कहा कि किस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने रिलेशन मैरिज यूज नहीं की है, उन्होंने यूज किया है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इफ रिलेशनशिप इज द इन द नेचर ऑफ मैरिज, वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस रेमेडी कुछ भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप है, अब हमने डिसाइड करना है कि जो वाइफ को रेमेडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब हमें लिव इन रिलेशनशिप में क्या देखना पड़ेगा, वेदर दैट लिव इन रिलेशनशिप इज इन द नेचर ऑफ मैरिज और नॉट। वेदर लिव इन रिलेशनशिप इज इन द नेचर ऑफ मैरिज और नॉट। इसके लिए क्योंकि कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, हमें 6-7 जजमेंट्स को करना पड़ेगा। ऑल दीज आर रिसेंट जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, कईयों में तो क्या है, केसेस आपके सर्विस लॉ के अंडर है पर कंसेप्ट लिव इन रिलेशनशिप का अप्लाई किया हुआ है, तो हमने तो कंसेप्चुअल लेवल पर देखना है। तो वो जैसे हादिया का केस हम इसमें करेंगे, वो लिव इन रिलेशनशिप में तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो क्या कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट है, यस, तो वो तो कंक्लूड करेंगे। फिर इंदिरा शर्मास केस कंक्लूड करेंगे विद इंदिरा शर्मास केस। ये वाला टॉपिक बेटा मंडे को कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। लिव इन रिलेशनशिप आपके हिंदू मैरिज एक्ट का इट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल, पर क्योंकि वो यूज करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, कोर्ट ने इस पर प्रोनाउंसमेंट दे चुके हैं, व्हेन लिव इन रिलेशनशिप विल बी इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो हमें वो सारी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स करनी पड़ेंगी which are governing this area, and we will conclude this topic with Indira Sharma's case. ठीक है प्लीज? सॉरी आज मुझे हाफ एन आवर डिले हो गया, मेरे बेटे का पेपर आज ना अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो वो बड़ा पैनिक हो गया कि मेरा स्किप ना हो जाए या वो हो जाए, तो फिर मुझे लगा नहीं, उसको छोड़ना ठीक नहीं है इस टाइम पर। यस बेटा, पोस्ट के लिए वो उनका स्कूल का ना जो ऐप है वो खुल नहीं रहा था, फिर वो जो ऑल्टरनेटिव उन्होंने मोड बताया वो इतना मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूं, फिर वो खुद ही उसने मैनेज तो कर लिया, पर उस टाइम वो बड़ा घबरा गया था कि मेरे साथ पता नहीं क्या। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होता, अगर नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम जाते हुए हैंड ओवर कर देंगे। वो कहता नहीं, तब तक तो कैंसिल भी हो चुका होगा। फिर मुझे लगा वो नहीं तो वो अंडर स्ट्रेस ही बैठा रहता कि मेरा पेपर हो गया है।
हो गया था बेटा। आजकल बच्चे ना पैनिक बहुत जल्दी करते हैं और उन्हें उस स्टेज में छोड़ना दैट इज नॉट राइट। इवन ये नहीं, हर स्टेज में बेटा, शायद हम भी जल्दी पैनिक कर जाते हैं, तो उस स्टेज में ना आदमी रैशनैलिटी अपनी लूज कर देता है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या ठीक है या गलत है। तो पैनिक की स्टेट में बच्चे को छोड़कर आने का वैसे ही मन नहीं करता कि आप ठीक होने चाहिए बच्चे। बेटा आपको मैरिज एक्ट के अपने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आपकी चलो क्लासेस हैं, मंडे का आपके पास टाइम है, तो सॉल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ देखने में लगता है बुकलेट है। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे जल्दी हो जाएगा बेटा। वो आपको जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, बिकॉज हमारा मैरिज एक्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक वाइंड अप हो जाएगा, तो आपके सारे मैरिज के डाउट्स उस टाइम तक क्लियर होने चाहिए। ठीक है प्लीज।